प्रजुक्ति विद्या मंत्री से 2024 राज्य विधानसभा निर्वाचन रे लोईसिंहारू ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होइतिले। ओडिशा स्वास्थ्य क्षेत्र रे तांकर अवदान उल्लेखनीय। 2019 मसीहा निर्वाचन पूर्वरु से लोईसिंहा अंचल रे मागणा स्वास्थ्य शिविर करी रोगी को मागणा औषध बंटन करुथिले। परे से सरकारी चाकरी स्वेच्छाकृत अवसर नहीं 2019 रे राजनीति रे जोग देइथिले। तेबे श्री मुकेश महालिंग केवल जड़े राजनैतिक नेता नुहंती, से ओडिशार गर्व एवं देशर एक दृढ़ अभिव्यक्ति, जी निज कार्य माध्यम रे एक शक्तिशाली और सुदृढ़ भविष्यत गठन पाई प्रतिबद्ध। Next on this panel we have Ms. Nilanjana Mukherjee, Managing Director of Kalinga Hospital, Bhubaneswar. Can we have her AV as well, please? Dr. Nilanjana Mukherjee is a forward-thinking healthcare leader and the driving force behind Kalinga Hospital's Bhubaneswar. As Managing Director, she has played a key role in modernizing hospital infrastructure, expanding its specialties and raising the standard of patient care. Her commitment to Odisha's healthcare development goes beyond the hospital walls. She has actively promoted rural health outreach, preventive care programs, and training for local medical professionals. Under her leadership, Kalinga Hospitals has become a trusted name in healthcare, touching thousands of lives across the state. Her vision continues to contribute significantly to build a healthier and stronger Odisha. Huge round of applause, please. Next, we have Dr. Priyavrata Dheer, founder and chairman of Sparsh Healthcare, Odisha. Can we have her AV, please? Dr. Priyavrata Dheer is a renowned healthcare professional, entrepreneur, and philanthropist from Odisha, best known as the founder and chairman of Sparsh Hospitals and Critical Care Private Limited. Dr. Dheer has played a transformative role in Odisha's healthcare sector. Since establishing Sparsh Hospitals in 2007, he has expanded it into a leading multi-speciality healthcare group, introducing advanced medical technologies and focusing on affordable, accessible care. Beyond medicine, Dr. Dheer is actively involved in social initiatives through organizations like Ma Tarini Trust and Bhubaneswar Stallion Club. Through his vision and dedication, Dr. Dheer continues to uplift both healthcare standards and community well-being in Odisha. Thank you. Next, we have Dr. Neeraj Mishra, a senior internal medicine specialist with over 38 years of experience. Let's have his AV, please. Dr. Niroj Kumar Mishra is a renowned specialist in internal medicine with over 38 years of rich clinical experience. A graduate of Sambalpur University and postgraduate from SCB Medical College, Cuttack. He has worked with top-tier institutions like Safdarjung Hospital, New Delhi, and was part of Prime Minister's medical team for 3 years. Currently practicing at Karo Clinic and Hospital and Amri Hospital in Bhubaneswar. Dr. Mishra has played a crucial role in advancing Odisha's healthcare ecosystem. During the COVID-19 pandemic, he provided critical guidance on public health strategies and supported timely lockdowns to help curb the spread of infection. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to our panelists here. This is going to be a very interesting session. Thank you so much for joining us. I would like to ask you, we all know health is wealth. And when you look at any economy, depending on how good the health sector is, that's where we say that the economy is developed. So tell me, what is the ground reality when it comes to health sector in Odisha? So, I think you're the perfect person to be talking about this, as you know what policies are happening, and of course you've also worked on the ground level. So thank you very much. Thank you very much, Bhaskar Live, Odisha Bhaskar Live presentation on healthcare session. समस्तंकु मोर अनेक शुभेच्छा। ओडिशा प्रदेश रे
गोटे हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर गुड एफोर्डेबल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल यही कॉन्सेप्ट रे आमे गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप ग्रहण करिछु एवं ग्राउंड रियलिटी हेल्थ केयर रो जदि आपण देखिबे आज भी पॉपुलेशन रेशियो रे बेड स्ट्रेंथ ओडिशा प्रदेश रे जितकी हेबा कथा तार इम्प्रूवमेंट दरकार अछि पॉपुलेशन रेशियो रे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ्स तार मध्य आमको आउ अधिक एफर्ट करबा पड़िबो ता सहित यूनिवर्सल हेल्थ केयर पाई आमे बहुत दिन रो अपेक्षा परे आयुष्मान भारत योजना एवं गोपबंधु आरोग्य योजना एवं एभव 70 इयर्स आयुष्मान भारत वयोवंदना योजना ओडिशा प्रदेश रे आमे गत एप्रिल 11 तारीख रु शुभारंभ कर देइछु एवं एबे आमे घर को घर बुली आमर मोर देन 48,000 आशा कर्मी समस्ते ताको डिस्ट्रीब्यूशन काम रे लागि छंती एवं आमे आशा रखिछु जे आमर 2-3टा नुआ पॉलिसी गवर्नमेंट रो जोटा एडॉप्ट करिछि गोटे परिवर्तित सरकार मु धन्यवाद देवी भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं मान्यवर मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी को जे आमे आसिला परे सरकार को आसिला परे 10 मास भितरे आमे प्रति जिल्ला रे गोटे गोटे नुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलिबार जो प्रक्रिया ताको आरंभ कर देइछु एवं यही बजेट रे 2025-26 बजेट रो जो आमर एप्रोप्रिएशन बिल समय रे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी 9टा नुआ मेडिकल कॉलेज पाई मध्य घोषणा कर देइछंती आमर जनरल एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज जगतसिंहपुर भद्रक ता सहित नवरंगपुर और ढेंकानाल रे 4टा खोलिया पई प्रक्रिया आरंभ होईछि ता सहित आपण माने जानिथिबे जे ओडिशा प्रदेश रे स्वाधीनतार 77 वर्ष परे मध्य गोटे ही गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज थिला ताकू आमे एक्सपांड करिकरी आउ 4टा नुआ गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज खोलिया पई व्यवस्था करूछु ता मध्य रे पुराना मेडिकल कॉलेज बुर्ला रे बरमपुर रे नुआ मेडिकल कॉलेज 2टा रे गोटे केउझर रे आ गोटे बलांगीर रे आ सहित निश्चित भाव रे डेंटल मेडिकल कॉलेज खुल्ला परे हमर डेंटल सेवा क्षेत्र रे उन्नति होबो एवं आउ गोटे बड़ है जे मेन पावर अपलिफ्टमेंट पाई आमे मयूरभंज रे मध्य गोटे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पाई हमर व्यवस्था करूछु तो आगामी दिन रे निश्चित भाव रे जेतेबेले भित्तिभूमि को सुदृढ़ करा जायछि मेन पावर निश्चित भाव रे आसिले हमर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे उन्नति हो थैंक यू What about you, Dr. Neeraj Mishra? आमे विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तो कहले सार कहले मु खाली कहबी आमे गोटे जिनस को भूली जाउँ जे माने आमे रोगटा हवा कहीं दवा सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तापर एम्फासिस बहुत दबा पड़ो बिकॉज आज फॉर द प्रेडिक्शन India is going to be hit by a tsunami of cancers and communicable, non-communicable diseases like heart attack or brain stroke, and as early as even in 5 years down the line, we are expecting the liver diseases are going to triple, 3 times age. And this is basically because of non-alcoholic fatty liver disease, जोटा आजिकली metabolically active steatotic liver disease को होचंती, and obesity. They all contribute कि significant रोगो जो burden मारी आसचे ताकू आमे केमिति प्रिवेंट करि परिबा से तरीके हमर वर्तमान प्रिवेंटिव हेल्थ ऊपर बहुत एम्फासिस दबा पड़ियो फॉर द टाइम बिंग एंड सेते लागि हमर विभिन्न एस्पेक्ट रे मु खाली कहबी गोटे मोर गोटे सजेशन रहबे मीडिया वाला को आपण जेबे देखियो से गोटे न्यूज़ को बारंबार चलची मोस्ट नेगेटिव न्यूज़ काहे कि हेल्थ न्यूज़ के आसुनी
पॉजिटिव हेल्थ एनवायरनमेंट केमती हो पार तापर किसी कहीं प्रोग्राम्स गुड़ा होनी सेगुड़ा उपर टिके दवा कथा डिजिटल प्लेटफॉर्म आजिकल मोर इम्पोर्टेंट आपणकर इंटरनेट यूज हो इवन सोशल मीडिया हो सेगुड़ा को मोर गोटे सजेसन रही से गोटे हेल्थ केमती आम गोटे भल हेल्थ एनवायरनमेंट रहीपर तापर से तो प्रथम इम्पोर्टेंट होची डाइट उपरे आमर जदि आशा कर्मी कि इवन जो मैंने आशा कर्मी कि विलेज हेल्थ वर्कर तक गोटे टैबलेट दि जाऊ जो डाइट ओडिया रे ब्यूटीफुली जो मैंने डाइटिशियन बढ़िया कि डाइट प्लान केमती हेल्दी डाइट जो मैंने विभिन्न आस्पेक्ट डायबिटीज ब्लड प्रेशर आगे कहते से रिच लोकों रोग एना से पूरा गाँ मानक भर्ती इवन कहते जो मैंने सोशली प्रिविलेज क्लास नुहति जो मैंने कि अंडर प्रिविलेज लोक से रोग गुड़ा बहुत अधिका है तेणु से केमती गोटे न्यूट्रिशनस गोटे डाइट नहीं पारे जदि जान के जो गला हेल्थ विलेज वर्कर तंप गला बुझेला जे आमे आपण मैंने या खातु एमती करूँ आउ यहाँ रही आप भल रे रोग गुड़ा हबार संभावना अच्छी आपको एमती भल रही पारे बैड हैबिट्स केमती दूरेबा अल्कोहल और स्मोकिंग है सब बड़ सोशल नुएंस ता सागर आजिकल आसीगला आमर ड्रग्स यूज ताको केमी कमे पारे तार बैड इफेक्ट्स उपर सेठी जदि से जाएंगे एक्सप्लेन करेंगे गोटे मोबाइल हेल्थ कैंप गोटे आमर अच्छी ताकू टिके एम्फासिस देवा से गले गाँव में डिफरेंट सब स्क्रीनिंग कले किसी नहीं सिंपल ब्लड प्रेशर देखिले गोटे ग्लूकोमीटर ने ब्लड सुगर टे चेक कले वेट देखिले को मैंने ओबीज अच्छा ओबेसिटी ये दी तीन रोग जस्ट खाली देखते ना पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड हो गला जड़े रेडियोलॉजिस्ट गले देखते फैटी लिवर आसुच्ची कि ये तीन चार रोग जोटा कि अल्प समय भितर जो एंटायर गाँव को स्क्रीन कर दे पारे ताल से प्रोएक्टिव मेजर्स जदि नवा ताल आम से कहीं रोग हवा को देवा गोटे कथा रहा गोटे खेलिया को पिला मानकर किसी स्कोप ना आ हेल्थ इज वेल्थ आ पिला जदि न खेल घरे बसी जदि मोबाइल रे देखले टीवी देखले से कौन रोग ही हम तेणु किसी गोटे खेलपाई गोटे किसी फैसिलिटी सब लेवल रे इवन सब डिविजनल लेवल रे अच्छी खाली मोर गोटे सजेसन रहा ओपन जिम जिम समस्ते अवॉइड करें जाकि एक्सपेंसेस ओपन जिम कनसेप्ट चारिआडे हो गलानी किसी माने 6-7टा कि 8टा खंडे विभिन्न रखीदेवे कि ओपन जिम लोक गले कले से ओपन जिम कनसेप्ट को टिके भावुँ आम कर बहुत कम पैसा इन्वेस्टमेंट से ओपन जिम जो गले लोक बुझाला ओपन जिम रे आपण जिम जो एक्सरसाइज कले बेनिफिट लोक गले मागणार कले तेणु किसी आमर इनोवेशन दरकार किसी माने छोटिया छोटा बेसी खर्च इतरे नहीं अल्प किसी दरकार सो दैट आम रोगटा प्रिवेंट कर पारे ताठू बड़ भली बड़ जिनसे किसी ना बाकी ऑलरेडी तो आमर हेल्थ केयर जो सर कहते जे आमर बेड्र सर्टेज अच्छी निश्चय बेड्र सर्टेज अच्छी हेल्थ केयर मैन पावर सर्टेज अच्छी ताले ऑलरेडी गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर टाइम आउ गोटे है जदि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट लेवल एटलिस्ट गोटे गोटे टर्सियरी केयर न हो किसी लेवल से टाइप किसी गोटे हॉस्पिटल जदि आउ गोटे क्रिएट हम कारण जो वर्कलोड रोचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गोटे ट्रेमेंडस तेणु से किसी गोटे बहुत भल कम दब जमी आमर ये जो आयुष्मान भारत स्कीम आसीगला तेणु दे विल टेक केयर कि से माने लोक मानकर पैसा दरकार नहीं लोक मैंने गले से ट्रीटमेंट पाइले मागणार आउट ऑफ पॉकेट खर्च लोकंर कम दरकार आपण गोटे साधारण कथा कहूँ जड़े लोक मो पाक आसिले मुझे देखला को आसला कि हियाडे मासिव हार्ट अटैक बस ओपीडी मो पाक आसते तेणु मो मुंड बुलेला से डिड हैव एनी मनी तापर ये मुझे जो आम विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड स्टार्ट होता तेणु मो माइंड के कौन आसला मो अपोलो से फोन कली से डॉक्टर ब्रज दास को कहली ब्रज आरे एमती पेसेंट आसी कौन किसी तुम से किसी कार्ड हो कहे हाँ मोर जस्ट स्टार्ट होती आपड़ पठे दिंतु भाई मुझे देखुची एंड खुशीर कथा से गला से 5 दिन रही पूरा ठीक है आसला 2टा स्टेंट लगे गोटे पैसा खर्च है माने ये जो कनसेप्ट आम जो स्टार्ट है बर्तमान से आहरी एवं बेटर हो गला आहरी आगू को भल हम तेणु से जो लोक केवे नल तार डेथ होता से कि आप एससीबी मेडिकल कॉलेज जो भिड़ से जो फैसिलिटी माने जो क्राउड जिते लोक से मैंने कौन जाइए एससीबी कर पारे आमर हो ना कैपिटल हॉस्पिटल तेणु सी तो चिकित्सा पाइपारा गोटे एग्जांपल कहूँ यहाँ मुझे 7-8-9 वर्ष तलर कथा जो बीएसके कार्ड स्टार्ट होता तेणु से गोटे से बर्तमान आशा गोटे रोच हाँ मोर रोग है मुझे चिकित्सा हो पारि जो क्वालिटी केयर अन्य मैंने पाँच से मैंने मु भी पाइपारि आउटा मोर ना कि मो पाखे पैसा ना कि मुझे तेणु से सब जिन गुड़ा बहुत भल ये जो स्टेप आमर ओडिशा स्टार्ट होती आहरी एक्सपांड हो मो मत रिमार्केबल स्टेप जोटा आम स्टेट बहुत आम स्टेट पूरा कंट्री भी बहुत भल रहा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज ऑल्सो
वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये बात की जानकारी देना और ओपन जिम्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हॉस्पिटल जाना ही कम पड़े. सो इट्स वेरी नाइस दैट यू स्टेटेड दैट पॉइंट. व्हाट अबाउट यू सर? Good afternoon. गुड आफ्टरनून. आप क्या कहते हैं कि करंट challenges हैं at the ground level? The healthcare facility what we have in Odisha now, it is developing over a period. The previous, when the previous government was there, they have also done a lot of infrastructure development. And we have seen the tragic time of COVID, where a lot of hospital is required, and that time a lot of patients are not getting beds also during that period. So my suggestion will be like whatever government infrastructure is there, and whatever infrastructure they are going to come up, we should have also good number of manpower for that. That means good manpower who can support the system. Infrastructure we can do, but manpower, skilled manpower, like doctors, paramedics, nurses, that is very important. And also the scheme which the government is bringing, previously it was BSY, now Ayushman Bharat is there. So these schemes has to be go to each and every corner of the state. Yeah, everyone should know about this. And rural area also people should know what is the scheme, what all benefits they are going to get. And also, like sir told, Maling sir also told, the role of private sector. So government should accept all private sector players who are there. So together they can have a better output. Like private sector also, like the Odisha state healthcare budget is almost around 40,000 crore. So in that, the private sector plays a major role also. So private sector joined together can give a better result, and definitely skill development of the staffs and everything, and machinery, equipments, whatever the private hospitals they are getting, or the government, whatever, some kind of subsidiaries, facilities should be there, so that we can also easily cater to this kind of scheme patients in a lower socio-economical group people. So these are the few points from my side. Nice, thank you. Very well said. Okay, ma'am, Mukherjee ji, you have transformed Kalinga Hospital so beautifully. So what is your reality of this entire situation? What do you think is the current challenge at the ground level? Okay. So Jai Jagannath to begin with. Thank you, Health Minister sir has always been a very, very big support, and I think he's one of the most smiling health minister whenever we come to him for any help. To start with, I have come to Odisha 10 years back, and there's been a humongous growth in the healthcare facility which the state has provided. We've become quite a healthcare hub now. Yes, we are confined to only Bhubaneswar and Cuttack. We are also expanding to other areas where hospitals are coming up in the other areas of the part of the state. And that is only because the government is very supportive. I will not distinguish between the previous government, this government, because the intention of bringing the state to that level is same for both the governments. The reason where Neeraj sir has already pointed out of certain areas, 2-3 areas which I would like to say. At the ground level, there is certain realities where mental health is a very big issue, and mental health is not covered in most of the insurances. So whenever a mental health patient comes in with a psychiatric medication, most of the insurances reject that. So that is a way forward plan which we need to really work on, because our next generation will face this problem. The second area which I would like to state, since our Honorable Health Minister is there are a lot of these doctors who have passed out MBBS, and they are very good technically skilled people who are working in different critical care areas in different hospitals. Now they are not a postgraduate, so they actually fall back when they have to enhance their skills.
So we have got something called the Health University in our state. If you can formulate courses where you have a stipulated time of experience being an MBBS doctor in certain areas and have certain certificate courses for them, so that there is a huge gap of getting doctors to do echocardiography for our hospitals, doctors to do ultrasound for our hospitals, because MD radiology, MD DM cardiology, the doctors are extremely scarce. So there has to be a gap between the two. We have an acute shortage of manpower to get the specialized manpower. So if Health University can see certain areas where these things can be bridged. And the third thing which Dheer sir said is that from the private partnership, what we can help the government is that the rural areas don't have the technical expertise to handle emergency. So let us help the government to tie up with them of sending skill development and skilled manpower to teach those people who can handle the technical emergencies and the realities. I think that will be a very good way we can actually collaborate and we can work together for the state. Thank So you. well said. All the 3 points are so valid. Mental health is still considered so backward in our country, and it's not looked forward, and it's not considered sometimes. And of course, education, further education for doctors is also important. So very well said. So I would come back to you, Malingam sir. आपका क्या नज़रिया है विकसित भारत 2030 के लिए, और आप हेल्थ केयर में क्या बदलाव देखना पसंद करेंगे उस टाइम तक? थैंक यू वेरी मच. विकसित भारत रो जो स्लोगन भारत वर्ष जितेबाला 100 इयर्स स्वाधीनतार हेब 2047 रे एवं आमे ओडिशा प्रदेश रे आ गोटे मिडवे आड़ को जाउछु. ओडिशा प्रदेश रो गठन रो 100 वर्ष आमे 2036 रे पालन करिवा. आ पई आमर किछि दिन तळे कैबिनेट रे मध्य गोटे बड़ निष्पत्ति हेछि जे 2036 रे एवं 2047 बेले ओडिशा को गोटे विकसित प्रदेश एवं भारत वर्ष को गोटे विकसित राष्ट्र करिया पई हेल्थ क्षेत्र रे गोटे बड़ वैप्लविक केमती परिवर्तन आसीबो ता पई आमर गोटे लंबा खसड़ा योजना मध्य प्रस्तुत हेछि एवं ताको इम्प्लीमेंट करिया पई हम मध्य प्रस्तुत अछु. जो कथा प्रोफेसर कहूतिले मेडिसिन स्पेशलिस्ट एवं स्पर्श हॉस्पिटल कलिंग हॉस्पिटल रो मैडम भी तो आमे ग्रासरूट लेवल रे गोटे प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ केयर तापरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तापरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सब डिविजनल हेडक्वार्टर तापरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तापरे कॉलेज पर्यंत जेतले आसुची तो ताकू आमे गोटे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देवा पई आमे प्रति ग्राम पंचायत रे गोटे गोटे आयुष्मान आरोग्य मंदिर रो परिकल्पना करूछु. एवं आम ओडिशा प्रदेश रे एबे आमर 6700 रु अधिका ग्राम पंचायत अच्छी ओडिशा प्रदेश रे एवं पाखापाखि आम पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मेन पावर 4500 रु अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रति ग्राम पंचायत रे हेछि एवं आगामी 2 वर्ष भितरे आमे आउ 2000 ऐड करिकरी पूरा सबु ग्राम पंचायत रे आमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर रो परिकल्पना करूछु. आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे आमे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को एम्फासिस देबू. सेथिरे जने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, जने मेल, जने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आउ जने योगा टीचर, यहाँ ही आमर मोड ऑफ ऑपरेशन रहिबो. एवं एबे गवर्नमेंट नुआ गवर्नमेंट आसिला परे जो कथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उपरे मेडिसिन स्पेशलिस्ट आमर कहूतिले तापाई आमे 120 प्रकार मेडिसिन सबू आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम पंचायत लेवल रे जो अच्छी ताकू आमे फ्री रे लोकन को देवार व्यवस्था करूछु. विशेष करी ब्लड प्रेशर सुगर आउ आमर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रो जहाँ इश्यूज अच्छी ताकू केमती रिजल्व करा जिवो एवं 8-10टी पैरामीटर्स रे पोर्टेबल किट द्वारा तांको आमे टेस्ट करबा जेमती हीमोग्लोबिन टिके टेस्ट हबो, ब्लड प्रेशर सुगर टेस्ट हबो,
तार व्यवस्था आम प्रिभेंटिव हेल्थ केयर मोड रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे आम करने सुव्यवस्था करुचु एवं गोटे गोटे योगा टीचर सब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रे रहिबे जाद्वारा गाँव रे पुणी जो भारत वर्षर जो थिला सांस्कृतिक वैभव आयुर्वेद होमियोपैथी उपरे ताहा पुणी बैक करिवो लोके सकाळु उठिकी टिके योगा करेंगे फैटी लिवर कथा कहते टिके योगा प्राणायाम ता सहित तांकर अन्य व्यवस्था करेंगे एवं मु धन्यवाद देवी ओडिशा प्रदेश रे जेतेबेले नुआ सरकार आसला आमे प्रति ब्लॉक हेडक्वार्टर रे 314 जाक ब्लॉक हेडक्वार्टर रे गोटे गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करिवार आमर योजना रही आगामी 5 वर्ष भितर गोटे गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे पाखापाखि आमे हिसाब करिछु 15 करोड्स इन्वेस्टमेंट हेबो एवं लोके टिके अट्रैक्ट हेबे फिजिकली मेंटली एटा को व्यवहार करिया पई आगामी दिन रे निश्चित भाव रे ए कार्यक्रम को आमे आकु नेबो एवं दिस इज आवर रोड मैप तापरे जो थरे कहतले कि हमर स्पेशलिस्ट डॉक्टर निश्चित भाव रे अभाव अछंती अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे मात्र 516 पीजी सीट पॉपुलेशन 4.5 करोड़ तो आपण कोठू स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीएससी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पर्यंत आनिबे तो ताकू मध्य आमे आगामी दिन रे इंफ्रास्ट्रक्चर रे सहित मैन पावर केमती बढ़िबो तापरे आपण देखंतु हमर 4.5 करोड़ पॉपुलेशन रे हमर बेड स्ट्रेंथ दरकार 45,000 अछि मात्र 26,000 ताकू आमे गोटे रोड मैप करूछु जे आगामी 5 वर्ष भितर आउ 20,000 ऐड करिवो माने 45,000 माने 1000 लोकरे गोटे बेड हवा कथा ताकू मध्य इम्प्रूवमेंट करिवार आवश्यकता अछि एवं आकू मिसेइले हमर ता सहित पैरामेडिकल स्टाफ्स डॉक्टर्स समस्तंकर दरकार अछि एवं आम रोड मैप रहिबो जे आगामी 5 वर्ष भितर आमे बेड स्ट्रेंथ ताकू कम से कम आमे ई वर्ष प्लान करिछु आगामी 5 वर्ष भितर 18,000 36,000 अछि प्लस 18,000 ता सहित मैन पावर मध्य बढ़ी जिवे आउ 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ्स रे एवं डॉक्टर्स रे आमे एबे रिक्रूटमेंट पाई 5,000 डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट काढिछु पुणी नेक्स्ट सेशन रे आउ 3,000 पैरामेडिकल स्टाफ्स रो काढिबु आज पर्यंत 4,000 पैरामेडिकल स्टाफ्स एवं डॉक्टर रिक्रूटमेंट दे सालुनी तो यहाँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस एवं आगामी 5 वर्ष भितर यहाँ को आमे करिबु एवं आउ थरु सबुथरु बड़ जिनस ओडिसा रे हला जे एमएमआर मैटरनल मोर्टालिटी रेट आ आईएमआर ये दीटा को केमिति नेशनल लेवल रे को कम्पीट करिकरी आमे एबे कोन करछु बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड सहित आमर एमएमआर और आईएमआर को तुलना करछु कुपोषण गोटे बड़ इश्यू रही आम पाखे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी गोटे बड़ इश्यू रही तो निश्चित भाव में गवर्नमेंट गोटे होलिस्टिक एप्रोच विभिन्न डिपार्टमेंट सहित करी आकू केमिति नेशनल लेवल रे कम करा जाई पारिबो तापई उद्यम रहिबो एवं विगत दिन रे भी आम लास्ट 2 इयर्स रे आम गोटे एनालिसिस करूथुलु निश्चित भाव में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 रे हमरो इम्प्रूवमेंट होईछि निश्चित भाव में किंतु आउ आगो को इम्प्रूवमेंट करिवार आवश्यकता रही एनीमिया इश्यू अच्छी मालन्यूट्रिशन कथा अच्छी फैटी लिवर अच्छी अनेक इश्यू अच्छी कैंसर इश्यू बरगढ़ रे अलार्मिंग है समस्त को गोटे स्क्रीनिंग करने आमर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सेठी स्क्रीनिंग केमती हेबो लोकन को बेटर ट्रीटमेंट केमती दिया जाय पारिबो सेहिति आम ये जो आयुष्मान भारत योजना और गोपबंधु आरोग्य योजना रे आमर हेल्थ केयर सिस्टम टाक ब्रॉडर रेंज रे नियाहला एवं पाखापाखि आम 29,000 रु अधिका पूरा पैन इंडिया कॉन्सेप्ट रे पूरा भारत वर्ष रे ई कार्ड रो ट्रीटमेंट आम पाई परिबा एवं आगामी दिन रे आ गोटे सबुठ बड़ जिनस है जो आयुष्मान भारत वयोवंदना कार्ड रे आपण 70 इयर्स एंड अबव जी भी थी आम भितर भी संभ्रांत परिवार समस्ते अच्छी गाँव रे अच्छी जो मैंने इनकम टैक्स दौथे 100 एकड़ जमी तांको पाखरे थिबो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होइथिबे कि 4 थर कैबिनेट मंत्री भी होइथिबे 70 इयर्स हैला माने तांको आयुष्मान भारत वयोवंदना कार्ड से माने निजे डाउनलोड करि परिबे एवं तांकर ट्रीटमेंट पाई सरकार देयमुक्त चिकित्सा सुविधा करिछि तो आगामी दिन रे हमर एटा हला वे फॉरवर्ड एवं आमे
ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। थैंक यू। थैंक यू। जब आप मुझे नंबर्स दे रहे थे तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि कितना महान पड़ाव है, इतना बड़ा पड़ाव है आपके सामने, और आप जिस तरीके से इसे मैनेज करते हैं स्ट्रेस फ्री विद अ स्माइल, थैंक यू सो मच फॉर दैट. You've taught us a big lesson in that. Okay, with this we come to the end of the health session, and we would like to now felicitate those who have really done well in healthcare sector in Odisha, and we would request the panel to kindly felicitate them. Our first name is High Tech Medical College and Hospital. Let's have a quick AV for them, please. High-Tech Group. Established with a vision to deliver excellence in education, the High-Tech Group of institutions has emerged as one of Odisha's most respected academic brands. With a strong presence in technical, medical and management education, the group is known for its state-of-the-art campuses, experienced faculty and industry-oriented approach. Home to institutions like High-Tech Medical College and Hospital, High-Tech College of Engineering and High-Tech Institute of Technology, the group has consistently nurtured skilled professionals ready to take on global challenges. With a strong focus on research, innovation and inclusive education, High-Tech continues to inspire and empower thousands of students every year. At the forefront of academic excellence and community service, High-Tech Group stands as a beacon of progress, proudly contributing to Odisha's education and healthcare ecosystem. And instead of Suresh Panigrahi, we have Biswaraj Panigrahi and Anil Panigrahi to please come and collect the award. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for them. Congratulations. Next winner in this category is 3S Dental Care. Can we please have the audio visual for 3S Dental Care, please? Dr. Sunil Kara is a renowned dental surgeon and founder of 3S Dental Care in Bhubaneswar, Odisha, with nearly 2 decades of experience. Specializing in dental implants, cosmetic dentistry, orthodontics and laser dentistry, he has transformed the dental care landscape in Odisha. After completing his BDS from Vinayaka Mission's Research Foundation and post-grad training at Sri Balaji Dental College, Dr. Kara has treated over 50,000 patients at his state-of-the-art clinic. Known for his patient-friendly approach, he offers a range of services including teeth whitening, crowns and root canal treatments. Beyond his practice, he actively participates in oral health awareness campaigns and free dental checkups for undeserved communities, earning him wide recognition in Odisha's healthcare community. Can we please invite Dr. Sunil Kar to kindly receive the award, please? Let's have a huge round of applause, please. Thank you. Heartiest congratulations. The next award goes to Sai Nursing Home, Baripada. He's not only a doctor, rather a philanthropist, social worker, and the nursing home provides best healthcare facilities in the locality of Baripada. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause to the founder, Dr. Aishwarya Rajpati, Managing Director, to kindly receive the award. Congratulations. Congratulations. We would now like to invite Shri Pradosh Patnaik, Chief Editor, Odisha Bhaskar, to kindly felicitate the dignitaries. Kostudas?
Okay, can we have Kaustuv Das, please, to kindly felicitate the dignitaries? Once again, we would like to thank our panelists for kindly joining us today and gracing us with their presence. Thank you, ladies and gentlemen. With this, we shall break for lunch and we shall see you at the next session at around 3:15. So kindly enjoy your break and we shall be back shortly for very interesting sessions. Rajdeep Sardesai is going to be with Tiska Chopra, so we shall see you then.